हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा. टुडे वी आर गोइंग टू डू क्लास 5 इंग्लिश सैम्पल पेपर. ये है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का सैम्पल पेपर फॉर द सेशन एंडिंग 2024-25. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आता है कॉम्प्रीहेंशन. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन. Once upon a time, in a small village, there lived a kind girl named Anya. Anya loved animals and often helped her father on their farm. One sunny day, while walking near the river, she found a little puppy that was lost and shivering. Anya picked up the puppy and took it home. She named it Max. सो आन्या विलेज में रहती है एंड शी लव्स एनिमल्स एंड वो अपने फादर को फार्म में हेल्प करती है. सो वन डे व्हेन शी इज वॉकिंग नियर द रिवर, शी फाइंड्स अ लिटिल पपी विच इज लॉस्ट एंड शिवरिंग. शिवरिंग इज ठंड में ठिठुर रहा है. आन्या पिक्ड अप द पपी एंड टुक इट होम एंड आन्या ने क्या नाम रखा पपी का? मैक्स. आन्या टुक केयर ऑफ मैक्स, फीडिंग हिम एंड प्लेइंग विद हिम एवरी डे. Max became very happy and loved Anya very much. They played together in the fields, ran around the trees, and even went on adventures to explore the village. Everyone in the village loved Max too, and he became a part of Anya's family. One day, while playing in the garden, Max chased a butterfly and ran away. Anya searched everywhere for him, calling his name, Max, Max. Finally, she found him under a big tree, happily barking at the butterfly. Anya was relieved and hugged Max tightly. She learned that even when things seem scary, love and friendship always brings happiness. आन्या टेक्स केयर ऑफ मैक्स, उसको फीड करती है, उसके साथ खेलती है. मैक्स भी बहुत खुश है, दोनों बहुत घुल मिल जाते हैं. एक दिन क्या होता है, व्हेन मैक्स इज चेजिंग अ बटरफ्लाई, ही रन्स अवे. आन्या उसको हर जगह ढूंढती है, वो कहीं नहीं मिलता, बट फाइनली एक बड़े से पेड़ के नीचे वो मैक्स को देखती है एंड ही इज हैप्पीली बार्किंग एट द बटरफ्लाई. सो व्हाट आन्या लर्न्स दैट इवन व्हेन थिंग्स सीम स्कैरी, आन्या डर गई थी मैक्स कहीं गुम गया है. लव एंड फ्रेंडशिप ऑलवेज ब्रिंग्स हैप्पीनेस. क्वेश्चन देख लेते हैं इसके. व्हाट डिड आन्या फाइंड नियर द रिवर? सो आन्या को क्या मिला था रिवर के बाहर? आन्या को रिवर के पास एक लिटिल पपी मिला था. सो आन्या फाउंड अ लिटिल पपी नियर द रिवर. कहाँ लिखा है ये? वन सनी डे while walking near the river she found a little puppy. नेक्स्ट क्वेश्चन. What did Anya name the puppy? सो आन्या ने क्या नाम रखा था पपी का? मैक्स. सो आन्या named the puppy मैक्स. How did Anya take care of Max? सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन देखिए. आन्या टुक केयर ऑफ मैक्स, फीडिंग हिम एंड प्लेइंग विद हिम एवरी डे. सो आन्या टुक केयर ऑफ मैक्स बाय फीडिंग हिम एंड प्लेइंग विद हिम एवरी डे. What did Max do one day while playing in the garden? Third paragraph, first line. One day while playing in the garden, Max chased a butterfly and ran away. So यही आंसर है. One day while playing in the garden, Max chased a butterfly and ran away. Where did Anya find Max? जब मैक्स भाग गया था फिर आन्या को मैक्स कहाँ मिला? Finally, she found him under a big tree. So Anya found Max under a big tree. What lesson did Anya learn from her experience with Max? So last line देखिए इस passage का. She learned that even when the things seem scary, love and friendship always brings happiness. So यही आंसर है. Anya learned that even when things seem scary, love and friendship always bring happiness. रीडिंग के बाद आता है राइटिंग सेक्शन, प्रोज एंड पोएट्री. क्वेश्चन 1. What were the things the girl does not want to share in the poem Nobody's Friend? Who was the poet in Nobody's Friend? Annette Blyton. So, the girl does not want to share her book, sweets and doll. Easy. Next question. Question 2. Why did the people of Kangli love their king and क्वीन? ये कौन से चैप्टर में से है क्वेश्चन? हु विल बी निंगदो. सो मणिपुरी में किंग को निंगदो बोलते हैं, राइट? कैंगलीपैक इज अ प्लेस इन मणिपुर. सो व्हाई डिड द पीपल ऑफ कैंगलीपैक लव देयर किंग एंड क्वीन? The people of Kangli loved their king and queen because they not only loved their people but also the birds and animals. They always thought of living in peace. Peace matlab shanti se, and making them happy. Next question, question number 3. Why did the captain send the men to the land? ये किस चैप्टर में से है? गलिवर्स ट्रैवल्स. सो स्टार्टिंग में ही था ना, दैट कैप्टन सेंट द मेन टू द लैंड टू सर्च फॉर वाटर. नेक्स्ट सेक्शन है ग्रामर. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक विद ग्रुप वर्ड. द डैश सैंग ब्यूटिफुली. सो ग्रुप ऑफ सिंगर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉयर. सो इसका आंसर होगा कॉयर. क्वेश्चन 2. राइट द ऑपोजिट लेंड. सो व्हाट्स द ऑपोजिट ऑफ लेंड? बोरो. क्वेश्चन 3.
राइट टू राइमिंग वर्ड्स ऑफ ट्रेन। सो ट्रेन के राइमिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं? एक तो हमारा हो सकता है ब्रेन और एक हम लिख सकते हैं ग्रेन। क्वेश्चन 4, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल्स क्या होते हैं हमारे? ए, एन या द। सो हरी वॉज डैश अनपॉपुलर बॉय। सो अनपॉपुलर में अ से पहले क्या आएगा? आर्टिकल एन। हरी वॉज एन अनपॉपुलर बॉय। क्वेश्चन 5, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अन, इम, डिस। सो रिस्पेक्ट का ऑपोजिट क्या होता है? डिसरिस्पेक्ट। क्वेश्चन 6, यूज द गिवन वर्ड एज एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ड्स वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। दे वॉक्ड टू कैच द ट्रेन डैश। तो क्विक का हमको एडवर्ब बनाना है। सो क्विक से क्या एडवर्ब बनेगा? क्विकली। पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। पंचुएट मतलब कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटलाइजेशंस। Wasn't Tom born on the 26 January 1989? सो इसमें क्या होगा? W कैपिटल हो जाएगा। टॉम प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ बॉय है, तो T कैपिटल हो जाएगा। जनवरी में J कैपिटल हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन है wasn't Tom born on 26? क्वेश्चन 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन्स एंड प्रोनाउंस के डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। एज डैश एज नाइट। सो नाइट के लिए हम क्या एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं? ब्लैक। सो इट कैन बी एज ब्लैक एज नाइट। Rearrange the word to make meaningful sentence and rewrite. So words jumbled up है, हमको इनको arrange करना है ताकि meaningful sentence बने. Ram intelligent is an boy का क्या हो जाएगा? Ram is an intelligent boy. Question 10. I shan't pinch anyone anymore. Write the full form of shan't. So shan't किसका short form है? किसका contraction है? Shall not. Next section है creative writing. Write the character sketch of Malu Bhalu. सो इसका आंसर देखते हैं. मालू वॉज अ ब्रेव पोलार बेयर. शी कुड कैच फिश वेरी इजिली. मालू वॉज इम्पेशेंट एंड वॉन्टेड टू गो बियॉन्ड द ब्लू स्काई टू प्ले. मालू वॉज प्लेफुल. शी वॉज वेरी केयरिंग एंड लव्ड हर मदर होल हार्टेडली. नेक्स्ट सेक्शन है मेरा स्पेलिंग. क्वेश्चन 1, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग. सो ट्रायम्फेंटली इज द फर्स्ट वर्ड. ट्रायम्फेंटली का क्या स्पेलिंग होता है? ये. ठीक है. Elevator. So this is the correct spelling of elevator. Bruise. This is the correct spelling of bruise. Question 2. Complete the following. First word है feeling of enjoyment. Feeling of enjoyment को हम कहते हैं pleasure. So Pleasure. Next word है greatly surprised. Greatly surprised means astonished. ASTONISHED. नेक्स्ट है हमारा हैंड राइटिंग सेक्शन. सो यू हैव टू बेसिकली एक पैसेज आपको गिवन है, आपको इसको रीराइट करना है ना गुड हैंड राइटिंग. रीराइट करते हुए किस चीज का ध्यान रखेंगे? पंचुएशंस, कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटलाइजेशन, इसका ध्यान रखेंगे एंड अच्छी से हैंड राइटिंग में हम इसको रीराइट करेंगे. लास्ट सेक्शन है हमारा वोकैबुलरी. क्वेश्चन 1, fill the appropriate group word. The dash of flowers was laying on the table. So flowers के group को हम क्या कहते हैं? Bunch. Question 2, write another word for contest. So contest का दूसरा word क्या होगा? Competition. Question 3, write the opposite of patient. So what's the opposite of patient? Impatient. Question 4, write synonyms of. So synonyms means same meaning वाले words जो होते हैं. So astonish का क्या होगा? Amaze. नेक्स्ट वर्ड है क्वियर. सो क्वियर का सिनोनिम क्या होता है? स्ट्रेंज. एंड दिस फिनिशेस विद द सैम्पल क्वेश्चन पेपर. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया. अगर आपके कोई भी डाउट्स है, इसके अलावा कोई भी और क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, डू पोस्ट इन द कमेंट्स एंड आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.